Good evening, everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Yog Vashishta Evening Study Group Sessions. Today we are on 32nd day. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सायंकाल के सत्र में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 32वें सत्र में हैं। तो रोज की तरह 3 बार ओमकार का उच्चारण करके आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। लेट अस ऑल क्लोज अवर आईज, अपनी आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। गुरुदेव कहते भूतकाल त्याग करने योग्य है। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और सांस को छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस वर्तमान क्षण का स्वागत ओम के नाद से करते हैं। ओम नाद करने के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। Take a deep breath in for Omkar chanting. Let us awaken the divinity within. गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम 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 पुनः पुनः। गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर ले। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे संस्कार, और यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है
तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करे। मुक्ति की राह पे चलने वाले हम लोग, मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग, यदि इस क्षण मुक्त हो जाए तो बचा हुआ जीवन, और यहाँ पे यदि किसी कारणवश लौट के आना भी पड़े तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें। और अपनी प्यारी सी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हो। Slowly and gently you may open your eyes. जय गुरुदेव। सो वेलकम अगेन। आप सभी का, सारे अपने जूम के पार्टिसिपेंट, सारे अपने यूट्यूब के व्यूअर्स और सारे अपने फेसबुक के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। So as we have already seen that we are going through the chapter number 3, the creation of this entire universe, Utpatti Prakaran. And here Vashishta Muni is giving Atma Gyan to Prabhu Ramchandra ji. Whereas Prabhu Ramchandra ji is also kept on asking very intelligent question, so that the more and more depth of knowledge can come out of the Muni. So to explain this, the Atma Gyan, that you are the ultimate source of this creation, you are that Atman, you are that Brahman, you are that Shiva, you are that Chaitanya consciousness, whatever name we can call. To explain that, and whatever else that we see is just an illusion, just as a Maya. Vashishta Muni is explaining all the insights about how one can realize this. And to explain this, here we are looking into Leela Saraswati and Padmaraja's Mandapa Akhyan. So we are going through one story by story, story inside story, story inside story. No? So it's all starts with, there is this king called Padmaraja and the queen is Leelavati, and they are living their life happily, getting worried about the future and wanting to always stay with our husband. Leelavati prays to Saraswati. Saraswati gives us to boon that the soul of your king, the husband, will not go outside this mandapa, no, outside this hall. And the second word that she asks, second boon she asks, is that the Saraswati always be present with her whenever she remembers her, and then she'll keep on guiding towards Atmajan, towards Mukti. So she gives her this, she receives this, and after some time Padmaraja happens to pass away. And then she gets a little bit dukhi, sorrow, and then she calls upon Saraswati. Saraswati takes her, gives her some techniques to meditate, and so that she can travel through the subtle body. So she happens to travel to the subtle body. She sees the Padmaraja's next birth. He is born there and he is leading another kingdom. He is just 16-year-old there, and all the other mantris and ministers of her own kingdom are also present over there. She is not able to understand this, comprehend this, comes back and see, oh, everybody is present. Once she calls upon a meeting. With a confused state, she calls upon Saraswati, no? And then Saraswati comes and then she starts questioning Saraswati that what is it all about? Kindly tell me. So Saraswati, again, they do meditate, and then their Sukshma Deha, no, Ativahik Sharir, with a subtle body, both of them travels to the previous birth of Leelavati Padmaraja. So they happens to visit the place where there is Vashishta Muni and his wife Arundhati. And Vashishta Muni, not Vashishta Muni, Vashishta Brahman.
Now, so this Vashishta Brahman is already died 8 days back, and there all that happens that she sees that they are crying and they are all not happy about all these things, which is very obvious. They lost both the parents. So she goes there, she sees all these things, and then she blesses the son. They are out of their sorrow. Then all this Srishti, this universe, both of them happens to see everything. And Leela keeps on asking the question after question, and Saraswati keeps on asking those answers to them. So while this journey continues, Leela expresses now that we have seen all these things. You have shown me the 3 births. Now my intention is to go and see what is happening with my husband. That is the Padma Raja, is what she thinks. And then the story continues where they happens to visit the next birth of Padma Raja. He is born as a king called Vidurat, and there also he has a wife exactly similar to like Leelavati. So now after he is preparing for the war with someone called as Sindhu Raja, and their war starts in the night when he comes back into a hall. Both of them through the Ativahik body, to the subtle body, happens to visit that place. That is where they appear in front of Vidurat Raja. And then Vidurat Raja also asks for a boon that whenever I'll there, let me go back to my body of my Padma Raja. And likewise, the things continued, and then his wife Leelavati comes there. Now, exactly looking like another Leela, the Leelavati of who is a wife of Padma Raja, asked Devi Saraswati that how is this possible? Now look at her, she is exactly like me. Is she me or is she somebody different? And all the other ministers and all other people which I see here, are they same as the one which I saw in my kingdom, or they are something different? And if at all, how is that is possible? These kind of questions she asks, and then Goddess Saraswati starts explaining the gimmick behind this, the reality behind this. So she says that look, it's all started with whom? It's all started with the Chitta Akash of Padma Raja. At the time of death, he imagined something in his own Chitta, and in that Chitta, whatever he imagined, he wanted to be with you. So he imagined you, so you become exactly like that. He wanted to be with all his ministers, so he went and he created those ministers also there, and they are also started living along with him. So it's all happening in the Chitta Akash of your Padma Raja. No, even the Padma Raja, who is whom? He is that Vashishta Brahmana. So all these things are happening. That's why as the bhavana comes inside the thing, the Ishwari Shakti that is present within all of us manifests exactly the same thing in your Chitta. So that is what has exactly happened with the Padma Raja also. And he started imagining all these things. So you see all these things over there. Now, while listening to all these things, the Leelavati, who is the Vidurat Patni, sees Saraswati because she is also praying to Goddess Saraswati from a long time. And then she asked for the boon that whenever she saw that my husband, Vidurat, he wanted to go back to the Padma Raja's body, she also asked for the boon that whenever my husband goes as in the form of Jivatma, I also wants to go along with him there in the same kingdom wherever he goes, means in the Padma Raja's kingdom. So Saraswati Devi also said Tathastu. Looking at this, the Leelavati, number one, Leelavati of Padma Raja's wife, she asked, oh, what is this? No, when I asked you, you asked me to sit and meditate and travel through the Ativahik Sharir, subtle body. But when she asked, you are allowing her to come there with the body. How is that? So here the goddess Saraswati asked him, I do not have any such ichhas, such desires. I am only giving what people ask me.
No, they do pray to me, and I just say, I just give them what they want. No? So that is exactly what she want. I gave her. What did you ask me? You asked me my presence to be with you, and you asked me for the Atma Gyan. You asked me for the Mukti. I given you that. So whatever you asked, I gave you that. Whatever the Padma Raja asked, he got that. Whatever the Vidurata is asking, he will get that. Hmm? So I am just, it is not my icha, it is not my desire, it is not my wish to give you something. It is that you all are asking for something, and all that I am doing is giving you what you all want. That is what exactly happens. And then after that, while happening all this, there is one saver, the one soldier comes and he start explaining that, oh, there is war that is happening, and there is this elephant who has gone mad. Now he's traveling here and there, and all these things are happening. Listening to this, the Vidurat Raja goes, he takes out his sword out and he goes to for the fight. Now, while after he goes, all this conversation is going on here between the Saraswati and both the Leelas who are present over there. And after some time, when the things comes, they starts fighting, and ultimately, as pre-decided, when Sindhu Raja also worshipped Saraswati, and he asked for the Vijay, means victory in this thing. At the same time, Padma Raja did not ask for the victory when he prayed to the Saraswati. So, according to that, the Sindhu Raja wins the war, and the Vidurat, he dies in the war. As soon as he dies, his Jivatma, he happens to travel and gets inside the body of the Padma Raja, who is lying in that sharir, which is covered with the flowers. That is all we saw. And at the same time, the Lilavati, which asked for that boon, she also travels along with him, and now she is sitting besides that body, because the moment she hears about this, even before the king Vidurat dies, she actually Murchavat, okay, she dies and she goes there. No, so she is beside now. All the other people, for them, it's just the Leelavati. They don't differentiate between this Leelavati and that Leelavati, because both of them are looking exactly alike. So she is sitting there and she is doing all the save of that body. So once that Padma Raja dies, he also goes and takes he enters into that Padma Raja's body. So all these things happen to be said here. Now, in these things, there is a lot of knowledge that is hidden. So whatever there is something called as Adhishtan. And there is also something in between also. Ram, while listening to all these stories, keeps on asking questions to Vashishta Muni, and Vashishta Muni keeps on answering them. So the first question that Prabhu Ramchandra ji asked, that you told me that all these things is unreal. No? So in this unreal world, this all mithya world, unreal world, all the niyams, all the things that has been there, all these shastras, all these scriptures, they have put forward so many niyams and yamas and niyamas here. No? So many laws of karma, so many things are there. Then are they also not real? No? Are these shastras are also not real? That is the question that Prabhu Ramchandra ji asked Vashishta Muni. So Vashishta Muni answers in that, look, whatever, there are two things. There is this Adhishtana, and then there is this Chitta Akashna. There's the Bhavana, the feelings, and the Vasanas of that particular soul, the Jivatma. Whatever they start feeling about it, exactly like that, his own creation is created for him. So the one who created this entire universe, at the point of creation, he have created according to his own will and wish. He created some Srishti, and in that Srishti he created something called as Niyati. No, and according to Niyati, one has to behave according to the laws of the nature, according to the laws of the karmas.
Hmm? So that is one thing that, so according to that, whatever the Shastras that are there, that are also applicable. Until when it is applicable? Until when the one person who is going through all these things realize that I am not this body, alone this body. I am not just this other things what I see as appears to be real to me. No, until one becomes free, all these things are applicable to them as it is. So this mithya, in a mithya unreal world, although this knowledge is also mithya, but until one realizes that freedom, that thing, it is equally real for them. No? So the Shastras are meant for the people who are living in this world to realize this Atma Gyan. They got to walk as per the Shastras. That is what the explanation Vasishtha Muni gives to Ramchandra, that don't feel that this is mithya, the Shastras are mithya, this knowledge is mithya, this knowledge is truth, and one has to follow this knowledge until they realize. And once they become realize, once they got Atman, they know anyway this knowledge is also vidya, this world is also not real, everything they will get it. Till that point of time, the one who are not realized, for them this will also knowledge also be equally applicable. And even once one become mukta, why they behave appearing to adhering the laws of this? Because they are also here, so they cannot break, because they are realized but not the other one. No, they are realized, not the judge. If they say, oh, I am realized, I will go and keep on doing something whatever I want to do, I am free, the other people are not yet realized, they will punish you according to their laws of karmas. So they also seems to follow the laws of the nature. But they do have the power, not through the body level, but through the subtle level. They will be able to do many different possibilities, because they have access to that possibilities, that infinite source of energies which they can utilize in their day-to-day mundane life. And that is how the miracles happens, right? That is how they acquire siddhis and all these shaktis and all that. They have access to those things because they are mukt. So that is what is being said here. Now, then there is something called as expressed as something called as tadatmyadhyas, and then there is something called as sansargadhyas. These are the two terminologies that are explained here. That what is this adhisthana of that chittakash, that chidakash and the brahmakash, no, that when it creates this samashti, no, so that point of time, whatever is that is the adhisthana. But when that adhisthana has that tadatmyadhyas, and when it comes into contact of this jivakash, and this jivakash coming into contact with that energy, coming into contact with this jivakash, how to get under influence of the sansargadhyas. No? So that is sanskar, means the impression that one particular jiva carries, that this entire world is real. And because of that, whatever he goes through, the pain and dukkha, sorrow, kama, krodha, lobha, mada, moha, matsara, all these chandrikus, no, all this greed, attachment, entanglements, all these things once goes through, for them it appears to be very real. No? So these are the two things that are explained here. No, but unless and until one follows these philosophies, follows these shastras, and then keep on walking on the path of this purushartha, applying the purushartha, dharma, the kam and moksha, and applying those, using those four gates of four moksha ke char dwar pan, in terms of shama and the self-control. Vichara means the self-inquiry, and santosha, contentment, and sadhu sangati, the company is what is called. Applying all this knowledge and keep on doing this purushartha as per the specifications given by the shastras, as per the vachanas that we are having, because we have a direct access to Gurudev now. Gurudev is his Saguna Sahit is there with us, no? So he has been guiding us from last 40 years. He's there with us, at least physical body, So he's there even before that in form of Guru Tattva.
he will remain there in the form of a Guru Tattva, but right now he is at least there with us, you know, three guna sahit. No, that is what we pray and say in the Guru Puja also. No? So he is there. So he is vachanas, whatever he is telling us. No, following all that becomes our dharma. That is what is right. That is what is rituals for. So whatever our guide Guru says to us, we got to just blindly believe that. And then apply that in our life, create our own experience, and keep on walking on this path of self-inquiry, doing Purusharth, using the 4 gates keepers and this knowledge. So all these things are continuously we need to keep on doing. So that is what happens. That is what we are supposed to. That is what could be the takeaway for this thing, you know, like no. So we, even they say that even this is a very importance is given that if you just do this thing, that thing, and do not do your prayatna, means if you do not do your purushartha, nobody is going to give you anything from outside. It is all your prayatna. It is all your purushartha is what you will ultimately get. No, it is the fall of your purushartha, your karma is what you will, whatever you sow, so will you reap. So that is exactly what is being told here, and that is what happens to all these different characters that we see here in this particular source. They have their own karma, they are going through their own imaginations, they have their own vasanas, desires, and according to only they are ripening, ripening the fruit of that. No, whatever that he wanted Brahmana, he got that next birth accordingly. Then the Padma Raja got accordingly, the Vidurata and the Sindhu Raja and the Lilavati one and the Lilavati two. All these things goes in that. And it has been said all these things, the Brahmanda of Padma Raja and the Brahmanda of Vidurata is not anywhere else. It is there in that Vasishta Brahmanas home itself. That is there Chittakash. This all this Chittakash who exist in the Chidakash. No? So that is what is been explained here. So that is and this Lila Saraswati continues that after Vidurata Mrityu again he travels, comes back here in the Padma Raja's body, in the Lilavati, his wife, Vidurata's wife, she also comes over there. All this thing, that story continues. Something that as we see into detail about that, because that story is still continuing, and we'll see that story, continuation of this story tomorrow. For today we'll pause here. Now I'll continue with the translation in Hindi. अभी हम लोग इसका हिंदी में भी अनुवाद देख लेते हैं कि कई सारे अपने भाई बहन अपने दादा दादी जो भी है अंग्रेजी जानते नहीं है, तो उनके लिए हम लोग यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पे नॉलेज ज्ञान जो भी डिस्कस करते हैं मराठी में पढ़ रहे हैं और उसको इंग्लिश और हिंदी में अनुवादित करें। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आप तक मराठी हिंदी इंग्लिश जो भी बुक है आप तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास जरूर अवश्य करेंगे। इसके पीडीएफ फॉर्मेट्स भी अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है, यदि वो भी आपको चाहिए तो वो भी आप तक हम लोग पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो अभी देखते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ पे है और कहाँ पे यह योग वशिष्ठ का ज्ञान अभी कहाँ पे चल रहा है। तो हमने देखा कि जो है प्रभु रामचंद्र जी को यह सब ज्ञान दे रहे हैं, और अभी हम लोग उत्पत्ति प्रकरण जो चैप्टर नंबर 3 है उत्पत्ति प्रकरण में चल रहा है। तो वहां पे फिर प्रभु रामचंद्र जी को वशिष्ठ मुनि ज्ञान देते हैं कि जो आप हो वही आत्मन है, वही एक ही ब्रह्मा है, शिवा है, एक ही है, और बाकी उसके अलावा जो भी दिखाई देता है वह सब एक मिथ्या है, एक माया है, इट्स अनरियल वर्ल्ड। अभी इसको ठीक से समझने के लिए काफी सारे एग्जाम्पल्स, काफी सारे कहानियों के माध्यम से वशिष्ठ मुनि यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी को यह सब बताते रहते, और प्रभु रामचंद्र जी भी ज्ञान को और ज्यादा निखारने के लिए और ज्यादा वशिष्ठ मुनि से ज्ञान को बाहर लाने के लिए अपने प्रश्न पूछते रहते हैं, और उन प्रश्नों की वजह से ही हमें यह सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लीला मंडपा आख्यान में रानी लीलावती, पद्म राजा
और जो सरस्वती देवी है, इनका आख्यान, मंडपा आख्यान यहाँ पे चल रहा है। इनकी कहानी, एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, दूसरी कहानी के अंदर तीसरी कहानी यहाँ पे चल रही है। और इस कहानी के जरिए सरस्वती देवी जो लीला के जो प्रश्नों के उत्तर देते जाती है, उसमें से भी कई सारा ज्ञान यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि जो लीलावती रानी रहती है और पद्म राजा रहते हैं, बड़े ही सुख से अपने राज्य में वो अपने वैवाहिक जीवन और राजकीय जीवन का उपभोग लेते रहते हैं। लेकिन रानी लीलावती के जो मन में एक चिंता की भावना व्यक्त हो जाती है। फिर वो सरस्वती देवी की प्रार्थना करके उनके से 2 वरदान ले लेती है कि मेरे पति का जो जो सोल है, आत्मा है, वह इस मंडप के बाहर ना जा पाए। ये पहला वरदान मांगती है। और दूसरा वरदान मांगती कि सदैव जब भी मैं आपका स्मरण करूं, आप मेरे साथ सानिध्य में होंगे और मुझे मार्गदर्शन करेंगे, ताकि मैं इसमें मार्ग पे आगे जा सकूं। इस तरह के 2 वरदान मांगती है। उन्हें वो वरदान प्राप्त हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद, कैसे सालों बाद, पद्म राजा की मृत्यु हो जाती है। पद्म राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर वो सरस्वती जी का स्मरण करती है। फिर सरस्वती उनको बोलती है कि इनकी बॉडी को इस तरह से ढक के रख दो फूलों के इसमें, और आप फिर ऐसे ध्यान करके सूक्ष्म रूप से अतिवाहिक शरीर से आप जाके देख सकते हैं। तो वही करती है, अपने सूक्ष्म अतिवाहिक शरीर से जाके देखती है अपने पद्म राजा का जो नया बर्थ उन्होंने जन्म ले चुके होते हैं, उसको जाके देखती है। वहां पे वो 16 साल के युवक उन्हें दिखाई देते हैं और वो राजा का किंगडम रूल करते रहते हैं। वहां पे उनको अपने कई सारे मंत्रीगण भी दिखाई देते, तो कंफ्यूज हो जाती है। फिर से अपने राज्य में आके देखती है तो उनको वो मंत्रीगण वगैरह सब कोई वहां पे देखते हैं। तो उसको फिर से लगता है कि ये क्या है। सरस्वती जी भी प्रार्थना करती है। फिर सरस्वती वहां पे आती है और उन्हें सारा जो है वो ठीक से समझाती है। और समझाने के लिए उनको फिर वो अपने पुराने बर्थ में भी उनको लेके जाती है, जहाँ पे वशिष्ठ ब्राह्मण की कथा हमने देखी कि वशिष्ठ ब्राह्मण जो एक राजा के जो सेरेमनी होता है वो उसको देखते हुए वो उसको मन में डिजायर हो जाती है, तो वही पद्म राजा का रूप धारण कर लेता है अगले जन्म में। और उनकी जो पत्नी रहती है अरुंधति, वो लीलावती के रूप में यहाँ पे आ जाती है। तो वहां पे देखती है, फिर इस बार वो दोनों के दोनों उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। फिर उनका जो पुत्र रहता है उनके सर के ऊपर हाथ रख के उनका सांत्वन वो वहां पे करते हैं। फिर लीलावती भी प्रश्न पूछती है कि अरे ये कैसे हो गया, तब तो मैं गई तो तब तो मैं किसी को दिखी नहीं, अब मैं इनको दिखी। तो बोले तब तुम्हारे मन में वो संकल्पना दृढ़ थी कि मैं शरीर ही रूपी हूँ, तुमको लग रहा था मेरा शरीर उधर बैठा हुआ है और इसलिए तुम वहां पे अपीयर नहीं हो रही। लेकिन अभी तुमने ये संकल्पना छोड़ दी है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं शरीर नहीं हूँ। नो, मैं तो वह चिदारूप आकाश वही स्वरूप हूँ, मैं वही आत्मन हूँ। तो अभी इसलिए तुम्हें सारे बंधन टूट गए, अभी तुम्हारे मन में भी इच्छा आ रही है, वो बिल्कुल अपने आप वहां पे फलित होते हुए दिखाई देते, इसलिए तुम उसको दिखाई दी। इस तरह से वर्णन करती है। फिर उस जो चिदा आकाश का जो ब्रह्मांड का वर्णन वहां पे किया है, विस्तृत वर्णन, बहुत ही सही वर्णन किया है, पढ़ने लायक है। इसलिए हम लोग अक्सर लोगों को बोलते हैं कि आप इसको पढ़े। ऐसे पढ़ते पढ़ते सब कुछ देखते देखते लीलावती फिर से अपने शरीर में आती है, फिर से जाती है। और फिर वो सरस्वती को बोलती है, अभी मेरे को इच्छा हो रही है कि मेरे जो अब बर्थ, नेक्स्ट बर्थ मेरे हस्बैंड ने लेके रखा है, पति ने लेके रखा है, मैं उसको देखने की इच्छा रखती हूँ। तो फिर वो दोनों वहां पे जाते हैं। और फिर वहां पे वो सिंधु राजा और जो अपने विदुरथ राजा, जो इनके पति है पद्म राजा, पर उन्होंने अपना रूप ले लिया वहां पे, वो वहां पे होते हैं। और फिर उनको दोनों में जंग छिड़ने वाली होती है। वो सब दृश्य देखते हैं, उनकी जंग भी छिड़ जाती है। फिर रात को वाके सो जाता है, ये दोनों सूक्ष्म रूप से वहां पे चले जाते हैं। वो एक प्रकाशमान देख के वहां पे वो जो विदुरथ राजा है वो जाग जाता है। फिर दोनों देवियों का स्वागत करता है और सरस्वती देवी से प्रार्थना करता है। वो उनसे प्रश्न भी पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उनका भी निराकरण सरस्वती वहां पे उनको बता के करती है कि इस तरह से तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तुमने ये सब कुछ, पद्म राजा का जो मृत्यु हुआ उस वक्त तुमने ही इस जन्म की चित्ताकाश में ही कल्पना कर ली और तुम यहाँ पे। तो फिर वो अपनी एक इच्छा वहां पे प्रकट करता है, सरस्वती से प्रार्थना करता है कि जैसे ही मेरा यहाँ पे यह देह छूट जाए, मैं वापस अपने पद्म राजा के देह में लौट के जा सकूं, ऐसी प्रार्थना करता है। तो तथास्तु कर देती है। तो उसके बाद में फिर जो वहां पे यह सब कुछ देखने के बाद वो वहां पे निकल जाती है। एंड देन
वो एक सेवक आके उनको एक बताता है कि वहां पे अभी तो जंग छिड़ने जा रहा है, आपकी वहां पे जरूरत है, तो वो अपना तलवार निकल के वो चला जाता है लड़ाई करने के लिए। वो सब कुछ देख के वहां पे जो अपनी विदुरथ राजा की जो पत्नी रहती है लीलावती, वो भी एग्जैक्टली इनके जैसे ही देखती रहती है, दिखती है इस लीलावती के जैसे। तो यह लीलावती जो पद्म राजा की पत्नी है, वो तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाती है, प्रश्न भी मन में आते हैं उसके। तो सरस्वती को प्रश्न पूछती है कि ये बातें ये कैसे, ये थोड़ा मुझे समझाओ। तो यहाँ पे अपनी सरस्वती उनको समझाते हुए दिखती है कि देखो बेटा, तुम्हें याद ठीक से याद होगा कि देखो, मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो उसके चित्त आकाश में जिसकी जो जैसी भावना होती है, उसकी वैसी वासना होती है, उसी रूप में जो उसके अंदर की जो ईश्वरीय शक्ति होती है कि उन्हीं का तो रूप है, वह क्या करती है आउटसाइड उसको ऐसे ही एग्जैक्टली मैनिफेस्ट कर लेती है। वो जो अधिष्ठान होता है, वही अधिष्ठान को लेके उसको जो भावना वासना के साथ जो चित्त रूप आकाश में जो कल्पना करते हैं, वो इसी तरह से बाहरी जग यहाँ पे वैसे ही दिखने लगता है। तो आपके पद्म राजा की यही इच्छा थी कि वो अपने पत्नी के साथ वैसी ही पत्नी उनको मिले, वही जो मंत्रीगण है उनके साथ आए, तो उन्होंने वैसा ही कल्पना किया और वैसे ही कल्पना उनका फलित हो गया। इस तरह से उनको वो समझाती। तो फिर यह सब कुछ सुनते हुए जो दूसरी वाली लीला रहती है, जो विदुर राजा की पत्नी रहती है, वो कहती है माते मुझे भी आप वरदान दो, क्योंकि वो भी सरस्वती देवी की काफी सालों से तपश्चर्या करती रहती है, आराधना करती रहती है। तो बोलते मुझे ऐसा वर दो, जब भी मेरे आपने जैसे बताया इनको कि विदुरथ राजा की मृत्यु हो जाएगी, तो उनका जीवात्मा ट्रेवल करके जो शरीर वहां पे पड़ा हुआ है पद्म राजा का, उसमें शरीर में वो प्रवेश कर लेगा। तो मेरे को वहां पे जाना है। तो उनको वो भी वरदान दे देती है। तो ये जो लीला होती है नंबर 1, पद्म राजा की पत्नी होती है, अरे ये कैसे, मेरे को तो बोला बॉडी में रहो, बॉडी को यहाँ पे रोक दो एंड सूक्ष्म रूप से ट्रैवल करो इधर उधर, और इसको तो बोलते हैं तू सदैव वहां पे चली जा सकती हो, ऐसे क्या, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे क्या आपने बोल दिया। तो बोलती है सरस्वती देवी, बोलती है मैं कौन होती हूँ कुछ इच्छा करने वाली, ये तो बोलती है मेरा काम है वरदान देना, आप मेरी आराधना करते हो, इच्छा भी आप ही करते हो, और वो मैं तो बस उसको तथास्तु बोलती हूँ ना। इसलिए बोलते हैं ना कि जब आप अध्यात्म के राह पे चलते हो, आप में वो वाक शुद्धि आती है, तो कोई किसी को बोल देते हो कुछ भी, तो वो उनके लिए फलित हो जाता है। तो बोलते जो कुछ भी आप बोलते हो, जो कुछ भी सोचते हो, वहां पे देवी देवता तथास्तु बोलने के लिए तैयार होता है। तो बड़े सोच समझ के बोलो, बड़े सोच समझ के सोचो, विचार भी सोच समझ के करो। इसीलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना हम लोग कर लेते हैं अपने गुरु से कि अपने सारे मुख से निकलने वाले सगरे शब्द, सारी वाणी, अपने सारे कर्म, अपने सारे विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागरूक होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे इंप्रेशंस, और यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है, तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो। यदि इस क्षण गुरु कृपा होके, शक्तिपात होके हम लोग मुक्त हो भी जाते हैं, तो भी उर्वरित जो जीवन है वो भी गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे ही चले, ऐसी हमें प्रार्थना, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं। क्योंकि जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। तो जो मांगना है तो क्यों छोटा क्यों मांगे ना, आस्क फॉर द बिगेस्ट, आस्क फॉर द हाईएस्ट। और किसी कारणवश कोई कारण हो गया, किसी के कुछ ऋण बचे हुए हैं, या सेवा करने के लिए क्यों ना बोलो, यहाँ पे लौट के बार बार आना पड़े, तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो। गुरु हमारे वही जो सत्य, जो चेतना, क्यों छोटा मांगे ना, आस्क फॉर द हाईएस्ट। यही प्रार्थना हम लोग रोज इसके लिए करते हुए दिखाई देते। तो वही सरस्वती देवी भी यहाँ पे बताती है, मैं कौन होती हूँ कुछ इच्छा करने वाली, ना मेरी कुछ इच्छा होती है, ना मैं किसी को कुछ देती हूँ। जो तुम मांगते हो, जो जिस प्रकार का तुम कर्म करते हो, उसी प्रकार का फल तुम्हें मिलते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे यह बात भी बहुत अच्छी तरह से बताई गई है कि यदि आपको कुछ चाहिए, तो उसके सिर्फ तो ऐसे करने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको बहुत सारे अपने प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अपने प्रयत्न करो, जो अपने पर प्रयत्न माने क्या, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अपना पुरुषार्थ करो। धर्म माने आपको जो रेगुलर ड्यूटीज है, जो आपका रोल आप प्ले कर रहे हो, वो आप जरूर करना। शास्त्रों के अनुसार आपको अनुकर करना है, उसको जरूर करना। धर्म अर्थ, उस शास्त्र के साथ अनुकर करने के लिए जो आपको मीन्स चाहिए, उसको अर्जित करो फिर।
अपना कर्म करो और उसको अर्जित करो, उसको हासिल करो, फिर उसको यूज करो। यहाँ पे अपने को ये लग रहा है तो ये कंप्यूटर लगता है, ये कर रहा है, अर्न अर्न इट। मोबाइल लगता है, अर्न इट। इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगता है, अर्न इट। देन यू विल बी एबल टू सिट टुगेदर हियर एंड डू इट। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, हैव गुड इंटेंशन इन लाइफ। कामना, जैसे हम लोग कामना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं, अच्छी कामनाएं होना वर्ल्डली लाइफ में, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट कामना, जिस पर्पस के लिए हम लोग मुक्ति मोक्ष के पर्पस पे राह पे चलना, इज द अल्टीमेट गोल, तो उसको भी मत भूलो। तो पुरुषार्थ में इन चारों का आप अपने अनिर्भूत कर दो, इसको अपने इसमें रूटीन जिंदगी में ढाल दो। ढालने के लिए इसको आपको उपयोग में क्या आएगा, यह जो ज्ञान है ये उपयोग में आएगा। उसको अपने जीवन में उतारो। मोक्ष के चार द्वारपाल जो बताए गए हैं, शम दम, शम मीन्स अपना जो पीस ऑफ माइंड है, शांति। दम मीन्स हैविंग से ओवर योर सेंसेस, माने जो विषय होते उनके इंद्रिय जो होते उनके जितेंद्रिय बनना ना, शम दम, इसका जिंदगी में उतार करो। देन सेकंड जो बोला है विचार, सेल्फ इंक्वायरी, वो मैं कौन हूं, मैं, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, यह कंटिन्यूअसली विचार अपने चालू रखो और अपने विवेक को हमेशा सत विवेक बुद्धि को अपना जागरूक रखो। यही तो प्रार्थना भी करते हैं नो। देन आपके पास फिर जो तीसरा आता है अपना कि संतोषा, ये सब कुछ करते समय कुछ पाने के लिए नहीं, मुझ को मुक्ति पाने के लिए नहीं कर रहा मैं, आई एम तृप्त, मेरे साथ गुरु है ना, वही मेरे साथ चैतन्यात्मा मेरे साथ है, और मुझे क्या चाहिए। तो फिर बार बार यहाँ पे आना भी पड़े उनके साथ, सो व्हाट, कोई तृप्ति है अभी इसी क्षण में। ऐसा नहीं कि मैं मुक्त हो जाऊंगा तब मैं तृप्त होऊंगा, मैं मोक्ष हो जाऊंगा तब मैं तृप्त होऊंगा, उसके प्रति भी कोई फ्यूरिशनेस नहीं, उसके प्रति भी कुछ, अरे कोई बात नहीं, वो है ना देखने के लिए, देख लेंगे, मैं खुश हूँ, मैं आनंद हूँ, वो संतोष, वो तृप्ति हर किसी चीज में। फिर वो अपने साथ जो लोग हैं उनके बारे में, अपने को जो खाना मिलता है उसके बारे में, जो भी मिलता है, जो भी मिला हुआ है उसके लिए तृप्ति, और जो नहीं मिला है उसके लिए भी कोई बहुत फ्यूरिशनेस नहीं, कोई ऐसा पजिस करने के लिए नहीं। हम अपने पुरुषार्थ करते रहेंगे, कर्मों के फल मिलते रहेंगे, जो भी है हाथ जोड़ के उसको स्वीकारते रहेंगे। ये हो गया संतोष। यह संतोष को अपने जीवन में उतारो, और फिर जो होता है साधु संगति, सत्संग, कंपनी ऑफ द गुड पीपल, बीइंग विद द पीपल, बीइंग विद द मास्टर, गुरु के सानिध्य में, गुरु की छत्र छाया में, उनके साथ हमेशा बने रहो, उनका सानिध्य अपने अंदर और बाहर सदैव हर क्षण उनको महसूस करो कि अपने साथ है। वही है, वही अंतरात्मा, वही जो चिदाकाश, वही जो ब्रह्मन, वही शिव, वही चैतन्य, वही गुरु सदैव मेरे साथ है, वो मेरे से कैसे कोई गलती होने देंगे। इस प्रार्थना के साथ अपना जीवन को आगे बढ़ाओ। यह ज्ञान हमें यहाँ पे इस योग वशिष्ठ के माध्यम से मिल रहा है, और अपना करते हुए बनता है कि इसी ज्ञान को हम लोग अपने तक ना सीमित रहते, सब तक इसको लेके जाए, अपने जीवन में भी उतारे, दूसरों के भी जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न करें। और वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सब लोग आते हैं, साथ में बैठ जाते हैं, सुबह शाम को एक साथ आके, और यही प्रयत्न अपना पुरुषार्थ हम लोग यहाँ पे जारी रख रहे हैं। तो यही होती फिर वो जो लीलावती वो प्रश्न पूछती है, इस तरह से उनको वरदान मिल जाता है, उनके ये हो जाता है। आगे चल के वीर जो विदुरथ राजा होता है, जो सिंधु राजा होता है, वो विदुरथ राजा ने भी जो मांगा होता है वो भी उसको मिलना होता है। जो सिंधु राजा ने भी सरस्वती देवी की प्रार्थना की थी और वो वहां पे विजय मांगता है, तो उसी की विजय हो जाती है, इस विदुरथ राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवात्मा जाके पद्म राजा के शरीर में चला जाता है। उससे पहले यह सब कुछ वृत्त को जानकर सुनकर वह लीलावती माने विदुरथ राजा की जो पत्नी रहती है वो वहां पे मूर्छित हो जाती है, और वह भी वहां पे जाके पद्म राजा के शरीर के साइड में वो उसको ऐसे अपना उनकी सेवा करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे लीलावती बोलती अरे कैसे क्या, जो पहली वाली लीलावती, अरे ऐसे कैसे क्या, तो बोलते वहां के लोगों को थोड़ी ना कोई फर्क समझ में आ रहा है, वो तो तुम्हारा शरीर एग्जैक्टली वैसे ही दिखता है, उसके जैसा दिखता है, तो उसने जो चाहा उसको मिल गया, तुम्हारे जो विदुरथ राजा ने चाहा उसको भी वो मिल गया, तुमने चाहा देखो आत्मज्ञान चाहिए, तुम्हें मेरा साथ चाहिए,
तो तुम्हें मेरा साथ में मिल गया, तुम्हें आत्मज्ञान भी मिल गया, तुम मुक्त हो। तो जिसको जो चाहिए वो सबको वैसा ही मिल गया। और ये सब कुछ कहाँ पे घटित हो रहा है? बोलते जो प्रश्न जो प्रभु रामचंद्र जी ने भी पूछा था, लीलावती भी जो पूछा था कि वहां के जो सैन्य रहते हैं और यहाँ के जो दिखाई जो सैन्य होते हैं, क्या वो सेम है, क्या वो अलग अलग है? ये लीलावती के मन में भी प्रश्न रहता है। तो बोलते हैं कि देखो ये जो है ना, यह उस पद्म राजा की संकल्पना है। तो पद्म राजा ने जैसी भावना व्यक्त की, जैसे वासना व्यक्त की, वैसे ही उनके चित्ताकाश में यह उनके अंदर का जो ईश्वर था, उनके अंदर की जो समष्टि का जो रूप था, उन्होंने क्या किया, वो बाहरी जगत में उसको क्रिएट कर दिया। तो वो अलग लोग है, वो चित्त आकाश अलग है, ये चित्त आकाश अलग है। वो विदुरथ राजा का चित्त आकाश और पद्म राजा का चित्त आकाश वैसे था, वैसे घटित होगा। यहाँ पे जो हो रहा है वो पद्म ब्राह्मण का जो चित्ताकाश है वो सब यहाँ पे जो है, वहां पे ये सब वैसे घटित हो गया। तो जैसे जैसे वासना, वैसे वैसे भावना, वैसे वैसे चित्ताकाश उसको अंदर ही ईश्वरी शक्ति से उसको फलीभूत करता है। बाहर का दृश्य जो है वैसे ही वो तैयार हो जाता है। और फिर वो शास्त्रों की भी बात आती है, जो प्रभु रामचंद्र जी पूछते हैं कि यह आप तो बोलते हो कि सब जगत मिथ्या है, तो क्या इसमें बताए गए सारे शास्त्र भी मिथ्या है? तो बोलते वैसे भी तो ये सब आप मिथ्या ही बोलते हो कि यहाँ के लोग भी मिथ्या, यहाँ के मंत्री भी मिथ्या, यहाँ का परिवार भी मिथ्या। तो ये सब कुछ जो आप बोल रहे हो, फिर यहाँ के जो नियम लगाए गए कि ऐसा करो ऐसा ना करो, इस बात पे चलो इस बात पे ना चलो, नो, पाप पुण्य का जो कंसेप्ट लगा के दिया है, ये शास्त्र लगा के दिए कि यह सब मिथ्या है। तो वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि जो उसका ब्रह्मांड, जो इसका रचयिता होता है, वो क्या करता है, उस रचना करते समय एक नियति की वहां पे क्रिएशन कर देता है। तो वो जो नियति रहती है, वो जो सृष्टि रहती है, वहां पे जो लॉज ऑफ नेचर रहते हैं, नियति के जो प्रकृति के जो नियम रहते हैं, वो नियम सबको एक समान वहां पे एप्लीकेबल होते हैं। तो तुम मुक्त जब तक ना हो जाओ, तब तुम्हें ये सारे नियम एप्लीकेबल होंगे। तो आपको सब ये करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि मैं अग्नि में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ नहीं जलेगा, वो आपका हाथ जल ही नहीं गया। तो बनाने वाले नियति ने उस अग्नि को ऐसे गुणधर्म दे दिए कि वो वैसे ही काम करेगा। तो जब तक, तो फिर इस शास्त्रों का रीजन क्या है, ये सब ज्ञान की पर्पस क्या है? बोलते जो इस देह में जो तुमने जो क्रिएशन में जो क्रिएट किए हुए जो सब लोग मनुष्य जीवात्मा है, प्राणी मात्रा है, उनको यह ज्ञान प्राप्त हो, आत्मज्ञान। जब तक उनको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो इसको रियल समझते रहेंगे। उनको यह आत्मज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए यह शास्त्र वहां पे क्रिएट किए गए, ताकि उन्हें यह रियलाइज हो, यह सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान उनको प्राप्त हो। इसलिए इसकी जरूरत है और इसके ऊपर भरोसा रख के इसको सत्य मान के चलना हमारे लिए अनिवार्य है। इसलिए अपने सारे कर्म जो है वो करते रहो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, अपने शास्त्रों के अनुसार चलते रहो। अपने गुरु ने वचन, हम लोग तो बहुत यहाँ पे भाग्यवान है कि अपने गुरु अपने साथ आज त्रिगुण सहित, माने अपने साथ हैप्पी बॉडी में है, फॉर्म में है, उनके वचनों पे चलना ही अपना धर्म हो जाता है। उन्होंने दिखाई हुई राह पे चलना ही अपना कर्तव्य हो जाता है। तो उसके ऊपर चलते रहो। और बोलते जब मुक्त भी हो जाओ, मुक्त हो जाने के बाद भी फिर तुम क्या करोगे, इधर उधर करोगे नहीं। बोलते तुम मुक्त हो गए हो, जो पुलिस वाला है ना वो मुक्त तो नहीं हुआ है। तुम यहाँ पे कुछ उटपटांग चीजें करने लगोगे, बोलेंगे मैं मुक्त हो गया हूँ, वैसा करते तो नहीं है मुक्त ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे तो वो मुक्त नहीं हुए, वो तुम्हें बराबर जेल में डालेंगे, वो बराबर तुम्हें वो जज बराबर सजा देगा, क्योंकि वो तो नहीं आत्मज्ञानी है ना, वो तो नहीं जानता है। तो बोलते मुक्त हो जाने के बाद भी तुम्हें फिर भी यह एप्लीकेबल रहेंगे। तुम उसके तरह कम से कम एक नौटंकी करने का कम से कम भ्रम करके एटलीस्ट तुम वहां पे बिहेव वैसे करना। तो इसलिए हम लोग देखते हैं ना कि गुरुदेव, उनको कोई जरूरत नहीं है सब पूजा वगैरह करने की, लेकिन फिर भी करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? ताकि हमारे जैसे जो जीव है वो उसमें आए, वो अच्छे मार्ग पे चले। नहीं तो मानस पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है यहाँ पे बताएगी। कर्म कांडों में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बावजूद भी शास्त्रों का इंपॉर्टेंस है, उसके बावजूद भी कर्म कांडों का इंपॉर्टेंस है। यही जो स्टोरी अपनी जो चालू होती है ना, कि क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे कर्म इंपॉर्टेंट है या ज्ञान इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं एक जगह पे शास्त्र में होता है, यार छोड़ो
कर्मों की जब तक तुम त्याग नहीं करते तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरे बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हारा आखिरी क्षण तक, तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हें ये कर्म कांड तो करने पड़ते हैं। तो अभी इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें यहाँ पे वशिष्ठ मुनि धीरे 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 कहते हुए दिखाई देते हैं। such a beautiful insights ना, slowly and gradually, धीरे धीरे बोलते हैं ना कि किस तरह से यह वो भी यहाँ पे कहानी में एक भी एक इस तरह से एनालॉजी बताई गई कि जो केली का जो पन्ना रहता है ना, केली का जो फ्रूट रहता है, उसको देखा है कैसे होता है, वो जैसे एक पेटल बाय पेटल ना, आप उसको खोलते जाओ, उसके अंदर फिर से वही, फिर से आप खोलो, फिर से उसके अंदर वही, फिर से आप खोलो, फिर से वही, फिर से खोलो, फिर से। बोलते इसी तरह से एक के जीव सृष्टि के अंदर वो चिदाकाश में, एक चित्ताकाश में दूसरा चित्ताकाश, दूसरे चित्ताकाश में तीसरा आकाश, तीसरे चित्ताकाश में, ऐसे ऐसे कई सारे जीवों ने अपने 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 वासनाओं के लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर ऐसे कई सारे ब्रह्मांडों का यहाँ पे बना लिया है। इट ऑल प्रेजेंट इन दैट चित्ताकाश ना, चिदाकाश, in the चित्ताकाश, so many चित्ताकाश, so many ब्रह्मांड in the चिदाकाश। ये ज्ञान वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी को बता रहे हैं। यही ज्ञान सरस्वती लीलावती को बताते हुए हमें दिखती है। वेरी नाइस, गुड गुड। तो चलो अभी इस सत्र को आपके लिए खुला कर देते हैं। आपके मन में यदि इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ लीजिए। किस चर्चा करना है तो चर्चा भी कर सकते हैं। यदि आपका कुछ अनुभव है, आपने कुछ पढ़ा है, आपको लगता है कि कुछ और अपना व्यू पॉइंट रखना है, तो वो भी हम लोग जरूर सुनने के लिए बेकरार हैं। जो भी आप चाहे उस तरह से हम लोग यहाँ पे भी करें। दिस इज योर टाइम। तो कुछ मन में प्रश्न है तो जरूर पूछ ले, फिर चर्चा को हम लोग इस सत्र को चर्चा के लिए खुला कर देंगे। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। सारा अनम्यूट वाला ऑप्शन ऑलरेडी खुला ही है। It's up to you. You can ask questions. We can continue. Whatever. Jai Gurudev. Thank you, Someshwar ji, for explaining it so beautifully, isn't it? Yeah, it takes us very nicely, exactly the way it should be. No, been practicing the whole day, it seems, to come up to that. Teach us the funda for this. Absolutely. I'll tell you one funda I have observed. It's my observation. He's no more on WhatsApp. So that is the best thing, I think so. Yeah, really, isn't it? Someshwar ji nearly quitted the WhatsApp, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है। आज दिन भर में उनके साथ बाहर घूम रहा था। Spending some time doing some shopping, all these things. Just joking, just joking. So nicely he said. अभी हमने देखा कि ये जो मन जो है वो कितना मतलब so spontaneous it is, कितना thought में एक एकदम the universes are created, एक के अंदर एक dream create होती है. Isn't it wonderful? इसी तरह से एक devotee था. Would you like to hear a story? It just clicked me now. Yeah, can I go with the story? Any thumbs up, any reactions? Yes, okay, well, thank you. Yeah, that's nice. So एक devotee था, वो अपने गुरु के पास जाता है और बोलता है, गुरु जी मुझे है ना एक ऐसा आदमी दे दो। हिंदी आई एम एक्चुअली स्पीकिंग फॉर मॉम देयर, सिटिंग देयर। या सो कहता है कि मुझे एक ऐसा कोई ऐसा आदमी दे दो, घर में नौकर नहीं है करने को काम, गार्डनर भी नहीं है, एक प्लॉट रखा है, उसके ऊपर बिल्डिंग भी बांधनी है, इतने सारे काम है मेरे अंदर कि मेरे से ना मेडिटेशन ही नहीं होती है। तो मुझे कोई तो ऐसे कुछ तो मुझे ऐसे कुछ उपाय दे दो। तो गुरुजी बहुत बड़े अच्छे मूड में थे, कहते हैं ओके वत्स तथास्तु, ये लो जिनी। एक जिनी देता है उसको, बोलता है ये जिनी जो है ना तुमको सब काम करके दे देगा। बोला अरे वाह, इतना ऐसा तो मेरे को चाहिए। दिन 24 घंटे का काम है मेरे पास जो मैं तो कर भी नहीं सकता हूँ। एंड दिस इज अ वंडरफुल आइडिया, जिनी मिल जाएगा तो मीन्स व्हाट। बोला चलो। बोला लेकिन ठहरो 1 मिनट, देयर इज अ कंडीशन। गुरुजी ने कहा। बोला क्या कंडीशन है? बोला इफ यू लीव हिम अलोन विदाउट एनी वर्क, मतलब अगर तुमने इसको काम नहीं दिया ना तुमको आके खाएगा।
बोला अरे इतना काम है घर में, क्या बात करता है, इसको फुर्सत भी नहीं मिलने वाली है। जल्दी से चीनी को लेता है और जल्दी जाता है घर में, अपने बीवी को बोलता है चलो देखो व्हाट इज गुरुदेव गिवन मी, एंड बीवी इज आल्सो वेरी हैप्पी, बोथ आर वेरी हैप्पी। लॉन्ग लिस्ट ऑफ द वर्क इज रेडी, खाना बनाओ, ये करो वो करो वो करो, सब करो। हो गया, जीनी आके खड़ा हो जाता है, जल्दी बोलो, काम बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें खा लूंगा। बोला ये तो प्रॉब्लम हो गया। बोला अच्छा चलो ये प्लॉट है ना, इसके ऊपर 40 रूम्स वाला ऐसे मस्त एक बिल्डिंग बांध दो। गया, बन के आया, चलो हो गया। बोला हो गया इतने में? 40 रूम्स का बिल्डिंग बोला था, मतलब ऐसा बोला था अपार्टमेंट बनाने। हाँ हो गया। अरे बाप रे, अभी ये तो थोड़ा सा घबरा गया कि बोला अच्छा अभी इसको है ना जाके फर्निश करके आ जाओ। गया, फर्निश करके आ गया। अरे ये भी हो गया। अभी थोड़ा चिंतित हो गया, यू नो कि सच अ हार्ड टास्क, जॉब आल्सो ही इज डूइंग इट सो इजी। इतना हार्ड बोलने के बाद भी, इतना यू नो एफर्ट्स वाला जॉब बोलने के बाद भी ये जल्दी कर देते हैं। दैट इज लाइक ही स्टार्टेड गेटिंग थोड़ा नर्वस नाउ कि अभी क्या होगा। तो और थोड़े और दो तीन ढूंढ ढूंढ के काम दिए उसको, सब दिया। वो जितनी जल्दी करके आके खड़ा हो जाता था, कम ऑन नेक्स्ट, नहीं तो मैं तुम्हें खा लूंगा। तो घर जाता है गुरु के पास अपने, बोलते ये जीनी तो दे दिया है तुमने, लेकिन ये सब काम है ना फर्स्ट फर्स्ट कर देता है बिल्कुल। बोला नहीं कि हो गया, बोला नहीं कि हो गया, अभी क्या क्या करूं मैं, ये तो मुझे खाने को आता है। बोला मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। बोला पर अभी इसका तो उपाय बताओ ना कि क्या करना है। बोला बहुत सिंपल है, ये तो तुम्हारा गार्डन उसने बनाया है ना, वहां पे एक पोल बना दो। उसको बोलो जब भी काम नहीं है ना तो उसको बोलो ऊपर जाओ नीचे आओ। On the pole means you go up, come down. It means what? This genie is our mind. If you don't give him the right track, the right thing, what he is going to do? वो आके तुम्हें ही खाता है, अपना ही मन है, वही तुम्हें आके खाता रहता है। उसको काम दे दो। कौन सा काम है? Going up the pole, going down the pole means inhalation and exhalation. प्राणायाम, अपने ब्रेथ पे, अपने श्वासों पे ध्यान लेके आओ। हर बार जब भी कोई काम ना हो, यू नो या थॉट्स तुम्हें सताते रहो, व्हाट गुरुदेव सेज, ब्रिंग योर अटेंशन टू योर ब्रेथ। जब हम श्वासों पे ध्यान लेके आते हैं तो क्या होता है, उसको काम मिल जाता है अपने। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, डू योर प्राणायाम्स, व्हाट हैपेंस, the mind becomes stable, it becomes centered, and it doesn't trouble you. The whole thing is that, you know, we don't have the control over our thoughts. हमको अपने विचारों पे ही कंट्रोल नहीं है। चलते जाते डोंट कम टू नो कि हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और अनजाने में कितने ऐसे थॉट्स भी कर लेते हैं, यू नो, थॉट्स ऑफ फियर, थॉट्स ऑफ एंजाइटी, एंड इट कीप्स ऑन ऑक्सिलेटिंग ना। माइंड देखो कैसे ऑक्सिलेट करता है, या पास्ट में या फ्यूचर में चलता रहता है। लेकिन उसको हम हैंडल कैसे करें? इसी तरह से वो पोल जो है अप एंड डाउन, दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस, योर अटेंशन टू योर ब्रेथ, दैट इज वन वे। अभी उसको काम मिल गया तो क्या हुआ, अभी जब भी कोई काम नहीं रहता तो बोलता था कि जाओ उस पोल पे जाके ऊपर नीचे हो जाओ, वो भी खुश, दोनों का काम हो जाता है। गुड। Yes. So do we have that genie? We have that genie with us. Only thing is, we know we should learn how to work with it. That is what it is. तो वही जो है मन जो है वो दुख जो हमें दुखी करता है, अब वो हमें सुखी करने लगता है। कैसे? वो ज्योत स्वरूप हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। यू नो, अंदर के जो ऐसे उत्पटांग हमारे जो ख्याल है जो हमको सताते रहते हैं, उस पर जब भी हम रोशनी डालते हैं, मतलब कौन सी रोशनी डालेंगे? अपने कॉन्शियसनेस की, अपने सेल्फ की। जब उसके ऊपर रोशनी डालते हैं तो हम देखते हैं कि अरे ये सब क्या है। यू नो, माइंड इज लाइक अ बॉक्स ऑफ थॉट्स, इट्स ओनली थॉट्स। यू गो एंड सर्च माइंड, यू डोंट गेट एनीवेयर, isn't it? But what is it going on inside? We don't come to. Now we get the power of analyzing. That is again the viveka.
That with that viveka we go on. So that is a very powerful tool which Gurudev gives us. Start analyzing what it is, what is good, what is bad, what is pure, what is impure, and coming to this knowledge. Abhi jaise bataya, the more you be in this path, the more it helps you to be stable. Otherwise there is a dragging going down towards your birth and death. But this knowledge supports you. That is why it is like being with the knowledge. Till you go and achieve that enlightenment. So there is a midway, there is a way between that. So that is what this knowledge is for. You need to be, अपने को ज्ञान के साथ जब हम बांध के रखते हैं तो हमारे गिरने के chances कम हो जाते हैं, है ना? ठीक है? Any questions? No? And we get better. Yes. Yes. Such a crush. This is so nice. Really, really amazing. No, it's such a beautiful story. I just listening actually. Wow, wow. Andar se aata tha, wow. Thank you so much, Sangeeta ji, for She's appreciating me. So that is more for me. Mama is appreciating. Thank you. वही नाम है ना, नाम जो जब हमको गुरुदेव देते हैं या जो मंत्र बोलते हैं बोलने को, इट मीन्स व्हाट, मन पे तरो, मतलब you keep your mind busy in that, otherwise it starts eating. That is the whole story about it. I'm saying this little for Jenny because she's in English, so that's why I'm just repeating. Yeah. Thank you so thank you so much. Yeah. Yeah. अपने साथ भी है सचिन जी ने. Would you like to say a few things, Sachin ji, Jenny ji? No, nothing particularly. Okay. Sachin ji, would you like to say something? Yeah, not much, but a very nice story by Sangeeta ji. So we can all correlate with it. So I will also tell one story today. Just one. हिंदी में बोलता हूँ तो सभी को ज्यादा समझे. गोंदवलेकर महाराज करके एक बड़े संत हो गए महाराष्ट्र में, जिन्होंने काफी नामस्मरण का काफी प्रचार किया था. तो उनके पास एक ऐसे ही बड़ा एक बिजनेसमैन आया, व्यापारी था वो, एंड वो बोला कि देखो मैं बहुत बिजी रहता हूँ पूरे दिन भर, मुझे ये नामस्मरण वगैरह करना कुछ टाइम मेरे पास है नहीं उसके लिए, तो मैं उसके लिए कुछ टाइम वगैरह लेके ऐसे 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठ नहीं सकता, ये नामस्मरण वगैरह मेरा कुछ ये नहीं है. तो ऐसा कोई मुझे उपाय बताओ कि जिससे मैं मेरा काम भी हो जाए और आप जो नामस्मरण बोलते हैं वो भी हो जाए, ऐसा कुछ मुझे मार्ग बताओ. तो वो गोंदवलेकर महाराज हंसते हैं और बोलते हैं ठीक है, मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा टाइम है दिन भर में जो आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते और वो आपका खुद का टाइम रहता है, ऐसा कोई टाइम बताओ. तो वो सोचता है बहुत ये करता है और बोलता है हाँ, जब मैं स्नान करता हूँ तब मैं अकेला रहता हूँ और वही मेरा टाइम है. तो गोंदवलेकर महाराज बोलते हैं चलो ये बढ़िया है, तो आप एक काम करो, जैसे पहला एक पानी का ड्रॉप आपके सर पे गिरेगा तो वो टाइम से जब तक आप बाहर नहीं आते हो तब तक नामस्मरण करो, एवरीडे यही फॉलो करना है, बस इतना ही आप करोगे तो भी आपका सब कंप्लीट होगा. तो वो बोलता है ठीक है, ये तो मतलब इजी है मेरे लिए, क्योंकि वो इतना ही टाइम मुझे मिलता है तो उसमें मैं करूँगा. तो हर दिन वो जब पहला वो ये लेता है शॉवर तो वो नामस्मरण चालू करता है और जब बाहर निकलता है तो वो खत्म करता है. और वो उसने बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो किया पूरे लाइफ में, वही करता था, बाकी कुछ ये नहीं, कुछ नहीं, जप नहीं, बाकी कुछ नहीं, जो उन्होंने बोला है वही फॉलो करता था. तो ऐसे करते करते वो बूढ़ा हो गया और बहुत एक बार थक गया और उसका कुछ उसको थोड़े डिजीज भी हो गए थे बाकी ये. तो एक बार वो सब करके उसमें अपना बेड पे लेटा हुआ था और
लेकिन जब भी वो स्नान करता था वो उसका वो चालू होता था। और उसके बाद क्या हुआ कि वो कोमा में चले गए। कोमा में चले गया और ऑलमोस्ट इन अ डाइंग स्टेज, लास्ट स्टेज था उसका। तो और डॉक्टर भी बोले कि अभी इसको बचाना मुश्किल है, इसका दिस इज इज लास्ट टाइम, तो आप जो लास्ट रिचुअल्स है वो करो उसके, जो भी है। तो उसमें वो अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्र उसको बोले कि चलो अभी इसको लेके बाकी सब ये करते हैं, क्योंकि ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग। तो जब वो उसको लेके गए और लास्ट राइट्स में हर एक इसको बॉडी को वो स्नान कराते हैं बॉडी को। तो जैसे ही उसको लेके गए लास्ट इसमें, और जैसे ही वो पानी का ड्रॉप उसके सर पे गिरा, तो वो उसने नामस्मरण चालू कर दिया। और वही नामस्मरण करते करते ही वो आ, मतलब वो इसमें गया और वही उसने प्राण छोड़ दिए। तो वो गुरु गोंदवलेकर महाराज को ये सब पता चला और उन्होंने बताया ये जो उसका मरण मतलब जो उसने प्राण त्यागे, ये बहुत बड़े योगी लोगों को भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब नामस्मरण करते करते ऐसा देह रखना ये बहुत ही पुण्यवान लोगों का ये होता है। तो इसका तात्पर्य यही है कि आप कोई भी एक नियम करो, लेकिन उसको अपने प्राणों से पले परे उसको फॉलो करो। छोटा भी अगर नियम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन फॉलो इट। सो दैट इज व्हाट मीन्स। एंड इफ यू बिलीव ऑन गुरु वाक्य, तो उसने इतना ही किया और वो मतलब अच्छे गति को गया। तो दैट्स व्हाट माय वाह। इसलिए हम लोग बोलते हैं भाई यहाँ पे बोलने वाले भी गुरु है, और वही एक ही स्वरूप है और कोई है ही नहीं उनके अलावा। तो इट्स सो ऑब्वियस। संगीता जी, जेनी जी, सचिन जी, अमेजिंग संगा इज देयर ना। वेरी नाइस यार, थैंक यू सो मच। चलो, किसी को कुछ बोलना है, बात करना है, तो अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर कर सकते हैं। दिस इज योर टाइम, वी स्टिल हैव 11 मोर मिनट्स। अपने पास और 11 मिनट है। यह आपका समय है, आपको जिस तरह से इसको यूटिलाइज करना है आप कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछते सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। दिस इज फुल्ली अप टू यू। अनगा जी, कुसुमताई, would you like to say something? वर्षा ताई, आजच्या दोन्ही गोष्टी इतक्या छान होत्या ना, आणि संगीताताईंनी खूप छान सांगड घातली. पोलवर चढणं उतरणं आणि श्वास घेणं आणि श्वास सोडणं. तर खरंच खूप म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, पण खूप अगदी मनात धरण्यासारख्या आहेत. आणि छोटासा नियम सुद्धा खरंच खूप चांगला आहे की कंटिन्युअस फॉलो करणं. थँक्यू. दोन्ही गोष्टी आवडल्या खूप. वेरी नाइस। अनगा जी, येतो आहे आवाज? आजचं सार काय, तर आपल्या इच्छांप्रमाणे आणि आपल्या कर्मांप्रमाणे आपल्याला पुढचा जन्म किंवा पुढची गती जी असते ती देव देत असतो. आणि म्हणून आणि आपलं चिदाकाश चित्ताकाश याच्यामध्ये आपल्याला जे लोक दिसतात ते पण आपल्या संकल्पाप्रमाणे असतात. आणि आपल्याला जोपर्यंत रिअलायझेशन होत नाही की हे सगळं मिथ्या आहे, तोपर्यंत आपल्याला एकामागून एक जन्म मिळत राहतात. आणि तेव्हा आपल्याला कळतं की हे मिथ्या आहे, तेव्हा आपल्याला मुक्ती मिळू शकते. खूब सुंदर अनगा जी। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है इस नॉलेज का? नेक्स्ट टाइम कोई आके तुम्हें कुछ कर देता है, तुम्हारे साथ कुछ बोल देता है, तो देखो ये तो नहीं सोचा था ऐसा तुम्हारे साथ हो, तो वो आके ऐसा कर देता है। तो जब तुम सोचोगे यार, यू कंटिन्यूअसली कीप ऑन थिंकिंग ऐसा कुछ होता है, अरे
he is so nice. ऐसे मन में बोला, he is so nice. He is coming. He is trying to go in and hugging me. ऐसा कुछ तो सोच सकते हैं उसके बारे में, no? हाँ सोच सकते हैं कि वो भी आपके साथ पूरा हो जाए. It's just another thing, no? होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी जय गुरुदेव, क्या फर्क पड़ता है. So what? So हम करो, आगे बढ़ो. Good. कुसुम जय ताई गुरुदेव. काही मला हा बोला. जय गुरुदेव. संगीतात इतकं सुंदर सांगितलं तर त्यातच मी थोडस भर घालते. तर हे साधन पंचकम म्हणून शंकराचार्यांचं आहे, त्याच्यातून सांगते. माइंडला जे त्यांनी काम द्यायला सांगितलं ना त्याच्यावरच. तर संग सत्सु विधेयताम भगवतो भक्ती दृढाधीयताम. हे हमेशा संग सत्संग आणि दृढ भक्ती भगवंताची, हे एक काम. नंतर दुसरं आहे प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम, म्हणजे ते प्रतिदिन ठेवायचं. आणि दुसरं आहे क्षुधाधिष्ट चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौध पूज्यताम स्वादु अन्न नतु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम शीतोष्णादि विषयताम नतु वृथा वाक्यम समुच्चर्यताम औदासीन्यम अभिप्सतताम जनकृपा नैष्ठुर्य भूतसृज्यताम. म्हणजे क्षुधा साठी स्वादू अन्नाची याचना नाही करायची, त्याची चिकित्सा नाही करायची, जे काही येईल ते प्राप्त करून घ्यायचं. दुसरं प्रतिदिनम भिक्षु, म्हणजे भिक्षेसाठी जे अन्न मिळेल, म्हणजे जसं जेवढं असतं तर तेवढंच वापरायचं. नंतर विधीप्रमाणे किंवा आपल्या ह्याच्याप्रमाणे जे आपल्याला प्राप्त होईल त्याच्या संतुष्ट राहायचं. आणि उदासीन म्हणजे सगळी कामं करायची व्यवस्थित, ड्युटीज हे ते सगळं, पण उदासीन होऊन म्हणजे त्याच्यात गुरफटायचं न गुरफटता. आणि जन जे आहे आपलं समाज, म्हणजे तर घरापासून समाजापर्यंत म्हटलं तरी, तर त्यांचं जे असेल कृपाची पण इच्छा नाही करायची, आणि त्यांची निष्ठुरता काय येत असेल त्याच्यावर पण जास्त हे नाही करायचं. आणि एकांते सुखमास्यता, एकांत म्हणजे त्यांनी आता जे मध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की नियम तो करायचा म्हणा थोडा वेळ तरी, आणि आणखी कोणी सांगितलं होतं की आंघोळ करताना मला फक्त वेळ आहे, तर तो तरी तेवढा वेळ आपल्यासाठी ठेवायचा मनापासून. धन्यवाद. आणि ह्याच्यात आणखी एक छोटीशी स्टोरी सांगते. हे विष्णू सहस्त्रनामाचं जे आहे, ओम विश्वम विष्णू रषट्कारो भूत भव्य भद्रभू भूत कृत भृद्भाव भूतात्मा भूत भावना. तर हे जे आहे वाक्य 2 म्हणा 2-3 वगैरे, तर एक साधू सत्संग म्हणा किंवा आश्रम, तर तिथे रोज म्हणजे जेवणावळी म्हणा किंवा प्रसाद रोज वाटला जायचा. तर त्या ठिकाणी बरीचशी लाईन असायची, मोठी लाईन असायची ह्याच्या वेळेला, त्यांच्या वेळेला तेव्हा ते वाटायचे. तर तेव्हा त्या लाईन मध्ये एक जण असा असायचा की तो फार आतुर असायचा तो प्रसाद घेण्यासाठी. त्याला ऍक्च्युली 6 मुलं होती घरी, आणि त्यांच्यासाठी त्यांना जेवू घालण्यासाठी ह्याच्याकडे काही नसायचं रोज. तर काय करायचा प्रश्न म्हणून तो त्या रांगेत उभा असायचा नाही. आणि काय करायचं इतकी मोठ्या लाईन मध्ये, तर ती घरी उपाशी लहान मुलं असायची, तर ह्याचा जीव तडफडायचा. तर तो काय करायचा, आवाज करायचा, खूप आवाज करायचा, आणि मला पाहिजे, आणि त्या ह्याच्यातून रांगेतून पुढे पुढे जायला बघायचा. तर सगळे कंटाळले होते त्याला की हा खूप हे पण करतो आणि पुढे पुढे येतो घ्यायला. मग त्यांनी जे आश्रमाचे होते गुरुदेव वगैरे, तर त्यांनी विचारलं की तुम्ही असं म्हणजे इतकं सगळ्यांना हे का करतात, इतक्या मोठ्या आवाजात हे करून वगैरे. मग त्यांनी सांगितलं की माझी छोटी छोटी मुलं आहेत आणि त्यांना काही
नाही खायला, म्हणून मला हे करावं लागतं. माझी इच्छा नसली तरी पण, आणि इथलं तुमचं डिसिप्लिन असली तरी पण. तर मग गुरुदेवांना त्यांना वाटलं की ठीक आहे तुमचं पण. तर तुम्ही एक काम कराल, तुम्ही त्यांनी सांगितलं की तुम्ही कुठं नामस्मरण करू शकता किंवा हे विष्णू सहस्त्रनाम हे करू शकता किंवा इथे आम्ही जो वाचते. तर ते म्हणाले मला ह्याच्यातलं काहीही येत नाही, मी काहीही करू शकत नाही. म्हणजे नमस्कार म्हणा किंवा भक्ती देवाची भक्ती किंवा काय, म्हणजे असं काही येऊ शकतं, मला नाही येत काही. तर त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, हे जे आहे विष्णू सहस्त्रनामचं पहिलं वाक्य 2 विश्वम विष्णू षटकार आहे, तर त्याच्यातलं काय तुम्हाला येऊ शकते. तर त्यांनी सांगितलं भूत कृत भूत भाव. हा तो ठीक आहे, हा शब्द एक आहे, ते 1-2 शब्द आहे. तर ते मग हे एवढे शब्द तरी तू म्हणू शकणार. तर म्हणाला हो. ठीक आहे, एवढे म्हणणार. मग तुम्ही आता घरी जाऊन आहे ना रोज तेवढे म्हणायचे. तेवढं कबूल केलं आणि घरी जाऊन रोज ते तेवढे शब्द म्हणायला लागले रोज. ते आणि ते त्याच वेळेला त्याच ठिकाणी बसून तेवढं मात्र तेवढं करायला लागले. आणि त्याचा इफेक्ट आणि मनापासून मात्र ते सांगितलं गुरुदेवांनी, मनापासून बसून तेवढे 2 मिनिटं 5 मिनिटं काय तुम्हाला बसता येईल तेवढं. तर एव्हरी डे ही यूज टू डू दॅट. परिणाम असा झाला की ही जी लाईन इथे असायची आणि रोज प्रसाद वाटला जायचा, तर त्या प्रसादातलं बरोबर त्याच्या 6 मुलांसाठी आणि त्याच्यासाठी जे अन्न तो रोज तिथून घ्यायचा, भांडून भांडून घ्यायचा की मला अजून थोडंच पाहिजे, अजून थोडंच पाहिजे. तर ते सगळं तेवढं अन्न रोज स्वतः ते जे मंदिर किंवा त्यांच्या आश्रमामध्ये जे श्रीकृष्णाची म्हणा मूर्ती किंवा देवाची जी मूर्ती होती ना, तर ते मूर्ती एक बालक स्वरूपात रिक्षामध्ये सायकलवरती जाऊन एक डब्बा भरून आणि तेवढं अन्न ते रोज त्यांच्या घरी पोहोचू लागलं. तर इकडे त्या अन्नामध्ये जे ते होतं, तर त्याच्यातलं बरोबर आहे ना तेवढं अन्न ते तेवढं काढलेलं सगळ्यांना दिसायला लागलं. आणि नंतर त्यांना पण आश्चर्य वाटलं की हा माणूस तर काही रोज जो यायचा, आवाज करायचा, सगळ्यांना अगदी माहिती व्हायचं, तर तो आता दिसत नाही. तर मग त्यांनी त्याच्या घरी पाठवलं कोणाला. तर आणि विचारलं. मग ते म्हणाले, "अरे, आश्रमातून गुरुदेवच तर आम्हाला रोज म्हणजे प्रसाद पाठवतात. सो आय डोंट हॅव टू कम टू युअर आश्रम ऑर मंदिर देअर." तर मग त्यांना आश्चर्य वाटलं आणि त्यांनी ते सेम गुरुदेवांना जाऊन आणि सांगितलं की असं आहे. तुम्ही जे त्यांना सांगितलं होतं, म्हणजे गुरुवाक्य जे आहे शब्द, गुरूंचा जो त्यांनी करायला सांगितलं होतं नामस्मरण, तर त्याचा केव्हा भव्य इफेक्ट आहे हे त्याच्यातून निदर्शनाला सगळ्यांना आलं. गुरुची कृपा पण कळली आणि देवाची कृपा पण कळली की देव देव गुरुसाठी म्हणा किंवा भक्तांसाठी किती कष्ट घेऊन आणि त्या भक्ताला पुरवण्यासाठी केवळ गुरु वाक्यामुळे. इट वॉज द मतितार्थ. थँक्यू. धन्यवाद. जय गुरुदेव. शेयरिंग है ना, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कुसुम ताई. आप जो संक्षिप्त में जो संस्कृत का ये संस्कृत भाषा का ये प्यारी है कि वो कई सारी चीजें बहुत संक्षिप्त रूप में कहने के लिए समर्थ है, नो? इसलिए बोलते हैं ना कि जो बहुत सारा जो ज्ञान होता है, ये सारा ज्ञान यहाँ पे भी देखो ना, ये तो वर्णन हम लोग बता रहे हैं आपको, बट इट्स इफ यू सी इट्स ऑल लिटिल Yes, बिट sir. नो. संस्कृत के हो. श्लोकास है, इन संस्कृत के श्लोका से ही यह ज्ञान आ गया, इसलिए इसको देव भाषा भी कहा गया है ना, कि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स. दे कम्युनिकेट एंड देन हाउ डू दे कम्युनिकेट? इन अ वेरी स्मॉल लिटिल टाइनी words and shlokas, no? That is how this Sanskrit is. So very beautiful. and उसके बाद में जो कुसुम ताई ने जो अपने को स्टोरी बताई, कितना सही बताया. It's very very nice. Thank you so much. Everybody's contribution is so good. No, that is the reason I said that कि वो बताने वाले भी गुरुदेव है और सुनने वाले भी सारे गुरुदेव ही है. एक ही है, अपने अंदर का सब चैतन्य एक ही है, और वही बार बार वो हमें रियलाइज करवा रहे हैं कि भाई यही ज्ञान है, समझो. जितने जल्दी समझ समझो. Jenny ji, did you understand anything? It was in Marathi, no? So just in some. I didn't understand that, but I was trying to, grasp the essence, but couldn't really. Jenny ji, so essence is that the knowledge is not in the words.
The knowledge is in between the words. So if you get that essence, you already have all the knowledge with you. No, because the moment you want to get the knowledge through words, it is anant. There is so much of knowledge is there. So forget about the words. I'm telling you, my mom is sitting over here. She does not understand English. And I tell you that every meditation, even if it is in English, she will do it. And she is on that bhakti marg, so bhakti में लीन रहती है. She does all whatever the routine जो उनको करना है, पूजा वगैरह वो सब करती रहती है, भक्ति में रहती है. कई सारे जो बड़े बड़े टीचर्स है, उनको जो नहीं मिलता है गुरुदेव वो देते हैं उनको. जब भी वो गुरुदेव से मिलती है, वो उनको पूरा एक फ्रूट देते हैं. जब हम लोग जर्मनी में थे, तो गुरुदेव की जो अपने वहां पे जो एक टीचर थी, वो एक सिर्फ साड़ी में थी और मम्मा सिर्फ साड़ी में रहती थी, बिकॉज वो बहुत टेम्परेचर कम हो रहता है, फिर साड़ी में रहना इज नॉट दैट इजी, है ना. तो जब वो गुरुदेव वहां से निकले फ्रैंकफर्ट के जाने के लिए मॉर्निंग में, तो वो वहां पे उर्मिला जी करके रहती है, वो वहां पे ये ताट लेके आई, पूजा का थाली लेके आई. And when she came, Gurudev communicates through eyes. No, he just looked at her. She came, she handed over that thali to Mama, and Mama ने गुरुदेव का आरती उतारा. This is गुरुदेव Germany में. So that was the period when we 5 days were there Ganesha. So हमने वहाँ पे गणपति का मूर्ति भी स्थापना किया था. गणेश उत्सव 5वें दिन मनाया था. एंड फिर 5वें दिन वहाँ पे गुरुदेव आए, फिर सत्संग वगैरह भी हुआ. 1-2 दिन गुरुदेव थे हमारे साथ उधर. एंड व्हेन ही wanted to fly to Frankfurt, वहां से बाद अंता का सिद्ध आश्रम, वहां से फ्रैंकफर्ट जाना पड़ता है टू गेट अ फ्लाइट. सो इन द मॉर्निंग ऑल दिस थिंग्स हैपेंड, एंड देन ही हैंड ओवर दैट थाली टू हर, एंड शी डिड द आरती इन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द मास्टर. जो कि हम लोग जानते हैं कितने करोड़ों लोग हैं, गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव को टच करना, ये करना भी काफी लोगों के नहीं, अपने मन में नहीं रहता है, आता है. So knowledge is not really in the word, it is there. आप भक्ति में डूब जाओ, वो आपको ऐसी चीजें देंगे ना कि न भूतो न भविष्य. इस तरह से होता है. मैंने तो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली होते हुए दिखाया है. तो ये सौभाग्य है हमारा कि गुरुदेव इज देयर इन लाइफ. वो त्रिगुण सहित अपने साथ है, उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद है. So nice. Okay. Just like they say, the music is in between the gaps. In between the gaps of the tones is the music. Same is the silence. Between your two thoughts, the gap is there. That is the silence that you have to experience. So it's all beyond the words. It's like that. And you know why I actually interrupted Jenny ji? Jenny ji was about to say things that I actually did not understood. See, यहाँ पे यज्ञ हो रहा है. If you say I did not understood anything, वो पलित हो जाएगा. I wanted to just cut. No, you got everything. Whatever you are supposed to get, you already got it. How does it matter in which language that is being spoken? How does it matter whether the words, we do not know the meaning of them, but whatever you're supposed to get, you got it. You go with that truth. You go with that contentment within that, whatever I'm supposed to get, I got it. It doesn't matter who is speaking in what language, I am present over there. Gurudev has wanted to give me this, he has given me this knowledge. That realization is there me. इसी तृप्ति के साथ जाना आगे. इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि जिसको जिस लैंग्वेज में बात करो ना, करने दो उनको. It doesn't matter whether we are. यहाँ पे कोई तमिलियन भी होता ना, I do not understand Tamil, and if they speak in Tamil, मैं उतने ही भक्ति भाव से, and this has happened with us many times when we go to the ashram ना, Gurudev speak in Kannada. It's not that we understand Kannada, but still हम लोग ऐसे ही बैठते हैं उनकी तरफ, as if we understand everything. It has happened multiple times. He conducts meditation in Kannada and we sit there, and meditation होता है. कैसे होता है फिर? समझ में तो आता नहीं, अपने आप होता है. So इसलिए I am really sorry that I interrupted you, but that was the feeling, that was the intention behind it. कि नहीं, आपके मुख से वो निकल ना जाए, because वो इस यज्ञ में जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो फलित हो जाता है. So ऐसा ना हो जाए कि आप बोले मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, I did not understand it. No, you got everything whatever you're supposed to. उनका आशीर्वाद है. Okay. With that note, आज का यह सत्र हम लोग यहीं पे समापन कर लेते हैं, रोक लेते हैं. फिर से एक बार कल मिलेंगे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव.
उनका आशीर्वाद